ویلکم بیک جی. بریک پہ جانے سے پہلے بات کاٹی تھی میں نے ڈاکٹر محیط پیرزادہ صاحب کی. انہیں کے پاس چلتے ہیں جو کہ اپنا آئی پیڈ اس وقت پیک کر رہے ہیں. سر رکھ دیجیے اور بات کیجیے. دیکھیں میں یہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان میں 2008 کے الیکشن کے بعد جی ایچ کیو میں اور پاکستان کی الیکٹڈ سویلین حکومت کے درمیان میں جو فورن پالیسی میں ایک آئی ٹو آئی نہ دیکھنے کا ایک رواج یا ایک کسٹم اسٹیبلش ہوا، جس کے بارے میں ہم مسلسل، یہ کوئی نئی بات میں نہیں کر رہا، مسلسل اخبارات میں یہ بات ہوتی رہی ہے، ٹیلی ویژن پروگرامز میں ہوتی رہی، اس میں بڑا لکھا گیا ہے، پاکستان سے باہر بھی لکھا گیا، پاکستان کے اندر بھی لکھا گیا. اور یہ جو ویزوں کا سارا جھگڑا تھا پچھلے 2 سال میں کہ 500 ویزے ایک گو میں دے دیے گئے، نہیں دیے گئے، پاکستان کی واشنگٹن میں ایمبیسی ایک چیز کہتی ہے، حکومت ایک اور چیز کہتی ہے، انٹیریئر کچھ اور کہتی ہے. اس میں امریکنز کو غالباً ایک سپیس ملی اپنا راستہ ڈھونڈنے کے لیے. وہ تو چاہتے تھے کہ ان کے سی آئی کے کانٹریکٹرز مطلب انہوں نے کچھ بات جی ایچ کیو سے کی، کچھ بات اسلام آباد سے کی، کہیں ان کی انٹیریئر نے بات مان لی. آپ نہیں مانتے کہ ساری کی ساری پالیسیز جو ہے وہ جی ایچ کیو بنا رہا ہے؟ میرا خیال 2008 سے پہلے تو 100% ان کو کنٹرول تھا، تو بڑی واضح سی بات تھی. لیکن 2008 کے بعد بھی ان کا عمل دخل تو بہت ہی زیادہ رہا، لیکن انہیں 100% کنٹرول نہیں تھا. اور میرا خیال جھگڑا یہی ہے. ٹھیک ہے. اور جھگڑے میں شامل کرتے کیری لوگر بل کو، جس وقت ہمارا ریئیکشن آیا تھا پاکستانیوں کا، وہ بھی اس وقت بھی یہی بات تھی کہ جی سویلینز کو کیوں پیسے دیے جا رہے ہیں، ہمیں ہینڈل کرنا چاہیے پیسوں کو. اب اس کی در حقیقت وجہ دیکھیں نا، آن دا فیس آف اٹ تو تھا کہ کچھ کیری لوگر بل میں ایسی کنڈیشنلٹیز تھیں جو آن دا فیس آف اٹ بڑی آبجیکشنبل لگتی تھیں. ان پہ بڑی بحث ہوئی اور پھر ایک دم ختم ہو گئی. مطلب ایک دم ختم ہو گئی. وہ بھی بڑی عجیب بات ہے. پہلے اس پہ اتنا شور و گو ہوا اور پھر وہ ایک دم ختم ہو گیا. اگر وہ اتنی اہم تھیں، ریفلیکشن نہیں ہے ہمارے میڈیا کے اوپر. میڈیا کا تو برا ہی حال ہے. کیونکہ دیکھیں ایک دم وہ شاہ محمود قریشی صاحب وہاں چلے گئے واشنگٹن میں، وہاں سے انہوں نے ایک خط لکھ دیا کہ جی نہیں پاکستان پہ کوئی کنڈیشنلٹیز نہیں ہے، سب کچھ ہے، اور وہ مسئلہ سارا ختم ہو گیا. اس سے یہی لگتا ہے کہ شاید جو کچھ آبجیکشنز ریز کی گئی تھیں وہ ان دا فرسٹ پلیس وہ نہیں تھیں جو کہا جا رہا تھا. کیونکہ کیری لوگر بل تو وہی رہا، کیری لوگر بل میں تو کوئی فرق نہیں پڑا. ٹھیک. جنرل صاحب آپ کے پاس بات کو لے کر آؤں گا. جب اتنا ڈیفیسٹ آف ٹرسٹ ہو، جب اتنے ملک کے اندر ایسا بحران موجود ہو کہ فوج جو ہے ٹرسٹ نہیں کرتی سویلین لیڈرشپ کو، سویلین لیڈرشپ بھی فوج کو نہیں ٹرسٹ کرتی، ایسے میں مارک گروسمن کیا کر لیں گے؟ نہیں، میرے خیال میں کئی ممالک جو ہیں وہ جو جمہوریت کی طرف جا رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کو جمہوری ادارے اپنے مضبوط ہوں، تو یہ ایک ٹرانزیشن کا پیریڈ ہے، ایک سفر ہے ہمارا. ٹھیک. 63 سال سے ہے سر ویسے. ہاں، لیکن ابھی تو بیچ میں بند ہو گیا تھا نا، 2008 سے پھر شروع ہوا ہے. تو وہ بھی یہ سمجھتے ہیں، ان کو ہماری کمزوریاں پتہ ہیں اور ہمیں بھی اپنی کمزوریاں پتہ ہیں. روزی اس کا بحث ہوتی ہے. تو کوشش تو ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ جو ہمارے جتنے بھی تصفیے ہیں، جتنے بھی فیصلے ہیں، ان کو ایک اداروں کے تھرو ہونے چاہیے. اور اس میں جو اصل میں انسٹیٹیوشنل جسے کہتے ہیں ڈیسیشن میکنگ، وہ نہیں ہو رہی. وہ اس وجہ سے نہیں ہو رہی ہے کہ جنرل مشرف صاحب نے اور اس کے بعد پھر ہمارے جو سویلین بھی قائدین ہیں، وہ اپنا ایک پرسنل ڈیسیشن دیتے ہیں، اپنے ومز پہ دیتے ہیں. اس کے بجائے کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ ایک فریم ورک ہونا چاہیے جس میں یہ بڑے اہم جو ڈیسیشنز ہیں وہ لیے جائیں. اچھا، چونکہ کوئی سیکریٹریٹ نہیں ہے اس قسم کا، تو ہوتا یہ ہے کہ جو فرض کیجئے جی ایچ کیو، چونکہ اس کے پاس ادارہ بڑا ہے، بھی جنرل صاحب بنا دے، اس میں بھی سارے خاکی وردی والے بیٹھے ہوں گے. ود ڈیو ریسپیکٹ. نہیں تو دیکھیے نا، تو پھر اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں، جو میں سمجھتا ہوں ایک جمہوری ملک کے لیے بڑا ضروری ہے کہ اپنی جو ڈیفنس ڈپارٹمنٹ ہے اس میں کوئی سٹرکچر ہو یا نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل ہو، دونوں میں سے ایک چیزیں تو کچھ نہ کچھ تو ہونا پڑیں گی. اس وجہ سے کہ جب تک آپ یہ تمام مسائل، چاہے وہ امریکہ سے تعلقات ہوں، چاہے انڈیا سے تعلقات ہوں، چاہے ٹیررزم کا معاملہ ہو، یہ تمام جو ہیں سب کے انپٹس جو ہیں اس میں آئیں اور اس پہ جو میجر میکرو ڈیسیشنز جسے کہتے ہیں، بنیادی اور بڑے ڈیسیشنز. جس کو اسی چیز میں ایڈ کروں کہ یہاں کا جو سب سے بڑا المیہ ہے کہ جو اصل میں ادارہ ہے در حقیقت جس نے ان تمام چیزوں کو سنبھالنا ہے، وہ ہے پاکستان فورن آفس. کیونکہ یہ فورن آفس کے سول سرونٹس ہیں جس کو آپ 25-26 برس کی عمر میں ریکروٹ کرتے ہیں. فورن آفس یا پی ایم او بھی، یہ پرائم منسٹر آفس. لیکن آپ تھوڑا سا فورن آفس کا مجھے یہ بتانے دیکھیں، آپ نے ایک سول سرونٹ کو ایک انتہائی کمپیٹیٹو ایگزام کے ذریعے 24-25 برس کی عمر میں سلیکٹ کیا، پھر آپ نے اس کو پوری دنیا میں ٹرین کروایا، پوری دنیا میں کبھی آپ نے اس کو بھارت میں لگایا، کبھی افغانستان میں لگایا، کبھی امریکہ میں لگایا، کبھی چین میں لگایا. بائی دا ٹائم وہ لوگ
सीनियर होते हैं, फॉरेन सेक्रेटरी बनते हैं, या फॉरेन सेक्रेटरी की जो टीम होती है उनकी, और फिर वो बतदरीज पढ़ते भी बहुत हैं, उनका मतलब एरिया स्पेशलाइजेशन होती है। ये आप किसकी तारीफ, किसको खुश कर रहे हैं? मैं किसी को नहीं खुश कर रहा, मेरे ज़हन में कोई भी नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि इंस्टीट्यूशन, नहीं तारीफ बहुत हो रही है ना, मैंने कहा देखिए आप डिस्कशन करें, अभी आप यहाँ से निकल जाएं, आप चले जाएं फॉरेन ऑफिस में कहीं सुबह किसी से ब्रीफिंग कर लें, जो अंडरस्टैंडिंग पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस के लोगों की अमेरिका के बारे में है, खित्ते के बारे में है, अफगानिस्तान के बारे में है, दुनिया के बारे में है, वो अफवाज पाकिस्तान की नहीं है, ना ही वो सियासतदानों की। थैंक यू वेरी मच फॉर सेइंग दैट। हो नहीं सकती, लेकिन हो ये नहीं साबित सकती। क्यों नहीं होता? नहीं हो नहीं सकती, ये हमारा इम्बैलेंस है, ये हमारे पावर स्ट्रक्चर का इम्बैलेंस है। डॉक्टर साहब, जलील साहब ने कहा कि जब कोई मुल्क हालत जंग में आ जाता है तो उस वक्त फिर फौज की, चाहे वो अमेरिकन फौज हो या पाकिस्तानी इनपुट फौज बढ़ जाता है ना, उनका इनपुट बढ़ जाता है, एग्रीड, इनपुट बढ़ जाता है। हालत जंग में सर हम 63 साल से तो नहीं है मेरे ख्याल में, वरना 63 साल से इनपुट बढ़ा हुआ है ना हमारे नहीं, इनपुट बढ़ जाता वो है। दूसरी चीज़ है, इनपुट बढ़ना दूसरी चीज़ है, इंस्टीट्यूशनल डिसीजन मेकिंग और चीज़ है। मैंने इसीलिए तो जनता से सवाल, कैपेसिटी का भी तो सवाल है डॉक्टर साहब। कैपेसिटी का भी इशू है। बिल्कुल ठीक है। अगर फौज एक बेहतर कैपेसिटी सामने लाती है तो वो ओवर रूल कर जाती है। देखिए, सिविलियन कैपेसिटी, सर आप कैपेसिटी से मुराद बंदूकें हैं आपकी? क्योंकि देखिए, बंदूकें लेके आते हैं ना वो। देखिए इंटेलेक्चुअल शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो अपनी प्रेस ब्रीफिंग की थी, जहां उन्होंने बड़ी बड़ी मारधाड़ किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी अपना सारा मौक़िफ़ एक्सप्लेन करने के लिए, उसमें उन्होंने एक जुमला बार बार कहा जो बड़ा खूबसूरत जुमला था। उन्होंने कहा भाई मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ ना कानून का, ना इंटरनेशनल कानून का, ना फॉरेन पॉलिसी का, मैं एक पॉलिटिशियन हूँ। मैंने सबसे पूछा, पॉलिटिशियन जो भी होते हैं, खा वो पीपल्स पार्टी के हों, खा PMLN के हों, किसी और जमात के हों, वो जर्नलिस्ट्स होते हैं, वो कम्युनिकेटर्स होते हैं, जिनका काम ये है, जर्नलिस्ट होते हैं, उन्होंने लोगों को जाके उनका एहतमाद हासिल करना होता है, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से वो कम्युनिकेट करते हैं, उनको इशू समझाते हैं आसान जुबान के अंदर, और उनका एहतमाद जीतते हैं और लीडरशिप लेके आते हैं। अब एक तरफ से GHQ ने, आर्मी ने और स्पाई एजेंसीज ने उनको अपना इनपुट देना है कि हमारा एनालिसिस ये कहता है कि हमारे मुल्क के और रियासत के इंटरेस्ट जो हैं वो इस तरह से बेस्ट सर्व होंगे। दूसरी तरफ से फॉरेन ऑफिस ने देना है, लेकिन इंटरनेशनल सीन और एरेना को अंडरस्टैंड करने में फॉरेन ऑफिस की अंडरस्टैंडिंग इन पाकिस्तान, अगर इदारे की आप बात करते हैं, इज सेकंड टू नन, बिकॉज एंगेजमेंट देखिए ना कितनी है। जो आदमी इस वक्त 55 बरस का बैठा है फॉरेन ऑफिस के अंदर, मतलब वो अंडरस्टैंडिंग होगी, एक्सपीरियंस भी होगा। अगर आप किसी प्रोफेसर को इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए, प्रोफेसर को नहीं है, उसकी अंडरस्टैंडिंग या हिस्ट्री के प्रोफेसर की बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस या नॉलेज है। विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं आप लोगों से जो असल नहीं सवाल सर, कर रहा हूं, नहीं, विद वो ये है कि सर कभी भी नहीं होगी सर। हम किताब पढ़ने में, किताबें पढ़ने में, डिबेट बाद में कर लेंगे। मैं यही तो कह रहा हूं अभी मेरा सवाल ये है कि अमेरिका से पाकिस्तान का जो रिलेशनशिप है वो कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। और डॉक्टर फारूक सलीम साहब, इस वक्त अगर मार्क ग्रोसमैन पाकिस्तान में प्रोफेसर है, एकेडमिक डिबेट्स तो करते हैं, ये फॉरेन ऑफिस के लोग सर, ना मैं प्रोफेसर हूं ना आप हैं सर, लेकिन आगे चलते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं ये कह रहा था कि मार्क ग्रोसमैन पाकिस्तान में है, तो अपार्ट फ्रॉम रेमंड डेविस और वो क्या क्या डिस्कस कर देखिए सकते हैं? फारूक साहब, Pointers इस में वक्त बताइए। अमेरिका की जो खारजा पॉलिसी है वो इतनी ज़बरदस्त तेज़ी से तब्दील हो रही है, उसको इतने झटके ये पड़ तो रहे मान सकते हैं हैं, ना, दुनिया भर में तब्दील इतने सारे झटके पड़ रहे हैं कि इस वक्त उनकी इवन इंटेलिजेंस एजेंसीज को समझ नहीं आ रहा कि उनके ऊपर इतने बड़े बड़े बम कहाँ से आ रहे हैं, कौन उनके ऊपर बरसा रहा है। उनकी प्लेट तकरीबन मसलन सारा विकीलीक्स देख लीजिए आप, विकीलीक्स मतलब आप जब सेनेट को ब्रीफ किया जा रहा था टूनीजिया के बारे में, तो CIA के डायरेक्टर ने कहा कि इजिप्ट के ऊपर हमें पूरी तरह एतमाद है कि वहाँ पे कोई तब्दीली आने वाली नहीं, और 3 दिन के अंदर इजिप्ट में तब्दीली शुरू हो गई। ये तो अमेरिकन नहीं, लेकिन अमेरिकन एजेंसी, सारी दुनिया को लग रहा था कि अमेरिकन एजेंसी किसी को मालूम नहीं था। अमेरिकन एजेंसी हमने कायरा नहीं जाना भाईजान। सर हमें पाकिस्तान आने दें, किसी ने वापस। लिखा करा नहीं। रहे हैं हमेशा के कंट्रोल डेमोक्रेसी। देखिए ये तो हो नहीं सकता कि ये करा रहे हैं, इनके मफाद के बिल्कुल खिलाफ जा। अच्छा चलो, ये ना करा रहे हैं 60 सर। पाकिस्तान के अंदर मार्क ग्रोसमैन और क्या क्या डिस्कस करेंगे अपार्ट फ्रॉम रेमंड डेविस? देखिए इसको आप पर्सपेक्टिव में रखें कि पिछले 63 साल से पाकिस्तान ना सिर्फ मुआशी एतबार से, इक़्तिसादी एतबार से अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट रहा है, हम फौजी एतबार से भी उनके ऊपर डिपेंडेंट हैं। हफीज शेख साहब से भी मिल रहे हैं और फौज से भी मिल रहे हैं, तो नेचुरली दोनों देखिए बातें हम एक मुल्क से पिछले 63 साल से एक ऑलमोस्ट कोल्ड वॉर की हालत में खड़े हैं, जो मुल्क हमसे 8 गुना बड़ा है, जिसकी फ़ौज हमसे 6 गुना बड़ी है। अमेरिका की मदद के बगैर हम वो स्टैंड नहीं बरकरार कर सकेंगे। तो ना सिर्फ इक़्तिसादी तौर पे, हम अस्करी तौर पे, फौजी तौर पे नहीं, वो तो सही है, वो भी डिपेंडेंट। वो तो सही है डॉक्टर साहब। अच्छा, अब अमेरिका का इंटरेस्ट देख लेना इस मुल्क में।
इस खिते में इंटरेस्ट देख लीजिए कि एक तो अफ़गानिस्तान का इंटरेस्ट है जो हमने डिस्कस किया कि वो इज़्ज़त के तौर पे ऑनरेबली इस मुल्क से इस खिते से एग्जिट करना चाहता है। तब दूसरा इंटरेस्ट उसका जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट मैं देखता हूँ वो ये है कि इंडिया को भी वो किसी एक स्टेज पे अमेरिका को थ्रेट ना बन जाए। इंडिया अमेरिका को थ्रेट बन सकता है एट एनी स्टेज, जिस तरह वो इकोनॉमिक ग्रोथ चल रही है उस बेसिस के ऊपर भी वो अमेरिका पाकिस्तान की मदद करता रहेगा कि इंडिया किसी स्टेज पे उभर के बहुत बड़ा मुल्क इकोनॉमिक थ्रेट की सूरत में सामने ना आ जाए। तो वो तो ठीक है सर, लेकिन इसका तो बिल्कुल मैं तो बिल्कुल इसके बरक्स समझता हूँ। वो तो ये इंडिया को तो बहुत Counterweight चाइना चाह रहे हैं कि हाँ उसको बहुत असल उनका जो पोटेंशियल थ्रेट है वो चाइना है। दोनों और जिस तरीके से तेज़ी से चाइना जो है तरक्की कर रहा है, उनका ख्याल है कि कोई 10-15 बरस में चाइना जो है वो बहुत मुमकिन है कि उनको चैलेंज करे। और ये बेहतर होगा कि अगर इंडिया जैसे ममालिक, जापान और साउथ कोरिया, खैर साउथ कोरिया निस्बतन छोटा मुल्क है, जापान और इंडिया मिलकर उसको चैलेंज करें रीजनल लेवल पर बजाय इसके कि वो बैनुल अक़वामी सतह पर। तो इस लिहाज से इंडिया को, और दूसरी बात यह है कि इंडिया में और अमेरिकन जो वैल्यू सिस्टम है वो बहुत उनमें कन्वर्जेंस है। इस वजह से कि वो ये समझते हैं कि ये एक किस्म का मैच्योर डेमोक्रेटिक स्टेट है और एक, हालांकि वो सेक्युलर कहते हैं अपने आप को, वो दूसरी बात है कि सेक्युलर हैं या नहीं, वो एक दूसरी चीज़ है, लेकिन कम से कम जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन है, तो हर लिहाज बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि अमेरिका में और इंडिया में कन्वर्जेंस है। तो वो इंडिया को तो इस वजह से भी पाकिस्तान को एक तरीक़े से परेशानी है, चूँकि इंडिया के और पाकिस्तान के जो ताल्लुक़ात हैं ख़ास तौर से बम्बई के इंसिडेंट के बाद बहुत ख़राब हो गए हैं। तो अमेरिका की जो हिमायत है इंडिया के साथ और जिस तरीक़े से अमेरिका इंडिया को देखता है, पाकिस्तान के लिए तशवीश का बास बनता है। और ये भी एक तरीक़े से डाइवर्जेंस यानी मुख्तलिफ इख्तलाफ का एक बास बनती है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान चूँकि चाइना के साथ अपने आप को नज़दीक करना चाहता है और उसकी वजह तो बिल्कुल वाज़ेह है, तो इस वजह से भी पाकिस्तान को वो देखता है कि भाई जैसे अगर हालात ख़राब हुए और चाइना पोटेंशियल थ्रेट बना। ये आपने बड़ी अच्छी बात की। मैं इसमें थोड़ा सा एक और एंगल पूछना चाहूँगा। एक साइड पे हम कहते हैं कि अमेरिका और चाइना की आपस में नहीं बनती, हमें लगता भी है, फॉक्स न्यूज़ कर रहा है, बाकी लोग कर रहे हैं। दूसरी साइड पे हम ये देखते हैं कि अगर चाइना चाहे, चाइना और जापान चाहे तो अमेरिका का जो डॉलर है वो डूब जाए, क्योंकि उनकी आधी इन्वेस्टमेंट है उसमें, उन्होंने ही खड़ा किया हुआ। तो ये तो नहीं है कि हमारी तरह अमेरिका भी क्लूलेस है, उसको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। देखिए, इसको आप लोग हर चीज़ को बहुत सिंपलीफाई करते हैं। समझने के लिए ना, एक मिनट मैं जरा इसको मैग्नीफाई या सिंपलीफाई। देखिए ये भी सिंपलीफिकेशन है कि अमेरिका जो है वो इस वक्त इंडिया को इस्तेमाल करेगा चाइना के खिलाफ, ये भी अमेरिकन पॉलिसी की सिंप्लीफिकेशन है। अगर आप उनकी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी पढ़ें, दिस इज एग्जैक्टली तो वो ये दोनों ममालिक को ऊपर नहीं बढ़ने दे रहा, इंडिया को भी और चाइना को भी। दो गुब्बारे फूल रहे हैं, हम वो सुई है जिसके जरिए उसकी हवा निकल नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, लेट मी एक्सप्लेन एंड कंप्लीट माय सेंटेंस। देखिए, बात दरअसल ये है कि इस वक्त अमेरिका जो है उसकी चीन से ताल्लुक़ात बहुत अच्छे भी हैं इक़्तिसादी लिहाज से, लेकिन इसके साथ साथ कई ऐसे भी प्रॉब्लम्स हैं ट्रेड के और करेंसी के और दूसरे, जो कि उससे सख्त इख्तलाफ है चाइना से, क्योंकि वो ये समझता है कि चाइना जो है मैनिपुलेट करता है अपनी करेंसी, चाहे वो गलत हो या सही हो, और अपनी नाकामियों को एक ब्लेम गेम में उसके ऊपर डालता है। तो देखना हमें ये है कि ये दोनों ममालिक जो हैं, एक तरफ तो अपने साथ अपने आप के ताल्लुक़ात को बेहतर करना चाहते हैं, दूसरी तरफ जो है इनके ताल्लुक़ात में तनाव भी है, लेकिन इंडिया के साथ जो है निस्बतन तनाव कम है और कन्वर्जेंस ज़्यादा है। इसी वजह से आपने इंडो US न्यूक्लियर डील, डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट और डिफेंस पैक्ट, उसके अलावा हाँ सैटेलाइट एग्रीमेंट, उसके अलावा कई ऐसी चीज़ें हैं जिससे ये इंडिया मिलता है हमें कि अमेरिका और इंडिया जो है टेक्नोलॉजी में भी और हाई टेक्नोलॉजी में, जो कि चाइना को और दूसरे ममालिक को और पाकिस्तान वगैरह सबको डिनाई करता है, उसको देता है। इसको मैं थोड़ा सा देखिए,